محکمہ پولیس میں گزشتہ ایک ہفتے قبل دو لسٹیں جاری ہوئیں، دو الزامات پولیس افسران پر لگائے گئے، جو کہ ابھی تک کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ سارے الزامات مزے کا خیز سامنے آ رہے ہیں۔ لیاقت حیات، اورنگزیب خٹک، ارشد آفریدی، شبیر خان، یہ کراچی پولیس کی شان اور آن ہے۔ اچھا، اب الزامات کی بات آتی ہے تو یہ وہ سارے افسران جتنے بھی ان کے نام ہیں، یہ 40 50 انکوائریاں بھگت چکے ہیں۔ یہ کوئی پی کیو آر تو ہے نہیں کہ 2-4 شکایتیں آئیں آپ نے پوری پی کیو آر کو یہ کھڈے لائن لگا دیا، بند کر دیا۔ وہ 8 سے 10 ہزار جو لوگ محکمہ پولیس کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو آپ نے بالکل دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ تو محکمہ ہے، تو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ تو سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سفارشی افسران ہیں، ایسے جو اقبال مارکیٹ ہیں، ان کے علاقے میں سب کچھ چل رہا ہے، لیکن وہ بھولو کے جوئے کا اڈا چل رہا ہے۔ گٹکا ماوے تو پورے کراچی میں چل رہا ہے، کہاں بند ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ محکمہ پولیس میں گزشتہ ایک ہفتے قبل دو لسٹیں جاری ہوئیں، دو الزامات پولیس افسران پر لگائے گئے، جو کہ ابھی تک کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ سارے الزامات مزے کا خیز سامنے آ رہے ہیں۔ ان کی کوئی بھی بنیاد مل نہیں پا رہی ہے، اور یہ جو فہرست 132 افسران و ملازمین کی جاری کی گئی ہے، وہ لگتا ہے کہ کم از کم 8 ماہ پہلے تیار کی گئی تھی، جسے گزشتہ ہفتے جاری کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو چند ڈی ایس پیز جو کراچی پولیس میں برس سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور یہ وہ ڈی ایس پی ہیں جو اپنے دور میں جہاں ایس ایچ او رہے، ان کی کارکردگی سپر سے بھی اوپر رہی ہے۔ ہائی پروفائل کیس جتنے بھی تھے وہ ان لوگوں نے حل کیے۔ ان میں جو نام میرے کو سامنے آ رہے ہیں، ان میں ایک ایس ڈی پی او سوراب کوٹ اورنگزیب خٹک ہیں، ایک ایس ڈی پی او جیکسن ہیں ارشد آفریدی، ایک ایس ڈی پی او گارڈن ہے کیسر علی شاہ، ایک ایس ڈی پی او پریڈی ہیں لیاقت حیات، اور ایک دو دوسرے ہیں جن کا نام ابھی لینا مناسب نہیں ہے۔ ان 4 کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ لیاقت حیات، اورنگزیب خٹک، ارشد آفریدی، شبیر خان، یہ کراچی پولیس کی شان اور آن ہے۔ ان کے اوپر ایک عجیب سے الزامات، جیسے یہ سابق کسی زمانے میں جو صدور ہوتے تھے یا وزیر اعظم ہوتے تھے یا سیاسی سطح پر ایسے مقدمے بنائے جاتے تھے، کسی پہ پٹی کی چوری کا اور کسی پہ بکری کی چوری کا، تو وہ الزامات یا وہ مقدمات ایک مذاق کی صورت بن کر رہ جاتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ڈگ یوچر تھا ہیچر منشیات کا عادی، وہ ایک تبلیغی جماعت والوں کو مل گیا۔ تبلیغی جماعت والے جب ظہر کے بعد بیان شروع کرتے تو شروع اسی سے کرتے اور کہتے کہ یہ دیکھیں، یہ جو پہلے تھا یہ نشہ کرتا تھا، منشیات کا عادی تھا، اور الحمدللہ آج یہ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بہتر ہو گیا ہے۔ جب کئی دن اس کے ساتھ ایسا ہوا تو اس نے ایک دن ان بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مجھے اتنا ذلیل تو خدا نے بھی نہیں کیا ہے جتنا ذلیل آپ لوگ کر رہے ہو۔ اب جو 132 کے قریب افسران و ملازمین کی فہرست جاری ہوئی ہے، یہ یقیناً 8 مہینے پرانی ہے، تیار کی گئی ہے، کیونکہ ان میں ان افسران کے نام بھی شامل ہے جو آج سے 6-7 مہینے پہلے کسی تھانے میں متعین تھے۔ تو اس فہرست کے اندر ایسے اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ افسران ایسے، یہ جو پولیس افسران ہیں یہ اکیلے تھوڑی ہوتے ہیں،
इनकी भी फैमिलीज हैं, इनके भी रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, चचा हैं, मामू हैं, फूफा हैं, खाला हैं, सास हैं, ससुर हैं, औलाद है, किसी के तो पोते पोतियां हो गए हैं, किसी के नवासे नवासियां हो गए। तो इन एक अफसर से, एक एसएचओ से उसके बेटे ने पूछा कि अबू, ये जितनी भी लिस्टें आती हैं इनमें कोई सी भी ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें आपका नाम नहीं होता है। लेकिन उस एसएचओ के जो कारनामे हैं, कारकर्दगी हैं, वो इंतहाई काबिल फख्र हैं। तो ये इस किस्म की फहरिस्तें जारी करना, इस किस्म के इल्जामात लगाना नामुनासिब रवैया है। इससे बददिली फैलती है, इससे बगावत फैलती है। कराची के जो अफसरान हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं जो सूरत हाल सामने है वो बता रहा हूँ। जो आंखों से देखता हूँ, जो कानों से सुनता हूँ, गौर फिक्र करता हूँ, उसके बाद मैं बात आपसे शेयर करता हूँ। आपको मैं बताऊं, एसएचओ जैक्सन है, आयात खान एसएचओ साहिब भी हैं, सज्जाद खान एसएचओ सुपर मार्केट हैं, फरूक हाशमी एसएचओ लियाकताबाद हैं, गुलाम यासीन, ये वो एसएचओ हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर बताने पे आएंगे तो प्रोग्राम 3 से 4 दिन तक के लिए आपको देखना पड़ेगा, और ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है। इन अफसरान को एक बात जहन में है, इनका ये कहना है। अब मैं आपको बताऊं, एसएचओ कलाकोट है आगा माशूक। आगा माशूक इतने प्यारे अफसर हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनके ऊपर भी इल्जाम है। अच्छा, अब इल्जामात की बात आती है तो ये वो सारे अफसरान जितने भी इनके अंदर नाम है, ये 40-40, 50-50 इंक्वायरियां भुगत चुके हैं, कमेटियों में पेश हो चुके हैं। अगर ये इतने ही खराब हैं तो उन इंक्वायरीज में, उन कमेटियों की जो रिपोर्ट होती है उनमें बेगुनाह कैसे साबित हो जाते हैं? बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं, बार बार इंक्वायरी होती है, बार बार मतलब एक हतक-आमीज रवैया कह लें कि वो अफसरान के साथ हो रहा है। ये बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं, और अब इदरीस आलम बंगश है, उसको पता नहीं उसके जिस्म में कितनी गोलियां और कितने छर्रे हैं, उसके जैसा दिलेर कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिल सकता। इन्हीं अफसरान में ऐसे भी हैं जैसे कि एसएचओ इस वक्त रिसाला में हैं नसीर तनोली, एसएचओ सदर हैं चौधरी जाहिद। इनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मतलब इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। ये एक पुलिस अफसर अपनी जगह पर एक इंसान भी तो है ना। इंसानियत के नाते जो रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका ख्याल रखना, वो मैंने इनको देखा है। इसी तरीके से वो खारागढ़ के ऐसे जो है पवन कुमार, डाक थाने के ऐसे जो है नंदलाल, ये अच्छा काम कर रहे हैं। इनको क्या मतलब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये खराब है तो फिर इनको महकमे से निकाल बाहर क्यों नहीं किया जाता? इन्हें रखा भी जाता है। इनको मतलब आप देखें, ये रवैये अच्छे नहीं हैं। आपने ये कोई PQR तो है नहीं कि 2-4 शिकायतें आई, आपने पूरी PQR को ही खुदे लाइन लगा दिया, बंद कर दिया। वो 8 से 10 हजार जो लोग महकमा पुलिस के साथ काम करते थे उनको आपने बिल्कुल दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये तो महकमा है, इसमें आप ये देखें कि जरा सी कोई बात आती है, अब तो ये अफसरान अदालतों से भी रुजू कर लेते हैं। आप डिफॉर्मेशन भी कर रहे हैं कि भाई हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसे इल्जामात। तो खैर, ये सब अफसरान जो जिन पर इल्जामात लगाए गए हैं, एक बार फिर इंक्वायरी इनकी हो रही है और ये सब इंक्वायरी देंगे। एसएचओ जैक्सन थे साबका मिट्ठल शर, उन्होंने जैक्सन थाने में अपनी तैनाती के दौरान तकरीबन 60 से 70 लाख रुपया तो नकद और करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद की थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें हटा दिया गया। जो अच्छे काम करने वाले हैं वो तो साइड में बैठे हुए हैं। अब आप ये देखेंगे, सिफारशी अफसरान हैं ऐसे जो इकबाल मार्केट हैं,
उनके इलाके में सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो भोलू के जुए का अड्डा चल रहा है। गुटखा मावा तो पूरे कराची में चल रहा है। कहाँ बंद है? कोई एक जगह मेरे को बताई जाए कि यहाँ गुटखा मावा नहीं है। जगह जगह पे सट्टे चल रहे हैं, जुए चल रहे हैं। आप पोश इलाकों में चले जाएं, पोश इलाकों में आप एक गाड़ी को नहीं रोक सकते। महकमा पुलिस को बेदस्तों न किया जाए, दीवार पे नहीं लगाया जाए। आप पोश इलाकों में चले जाएं, आप ये देखेंगे कोकीन, अंग्रेजी शराब, असमत फरोशी, फहाशी, मसाज सेंटर, ब्यूटी सैलून की आड़ में दूसरे मकरूह धंधे, शराब के स्टोर रात गए तक खुले होते हैं। पूरे शहर में शराब के स्टोर जो हैं वो खुले रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और रात को बंद होते हैं। उसके बाद ब्लैक में बिक रही होती है। इनकी तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। क्या पूरे माशरे में सिर्फ एक गुटखा और मावा ही रह गया है? जनाब, ये गुटखा मावा खाने वाले खत्म होंगे, डिमांड खत्म होगी तो गुटखा मावा खत्म होगा, वरना ये गुटखा मावा खाने वाले अपने एक पाव छालिया लेते हैं, थोड़ा चूना लेते हैं, थोड़ा कच्चा तंबाकू लेके मिला के अपना खा लेते हैं। ये इस तरह खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए एक अवेयरनेस होगी। इसके लिए आपको लोगों को ले जाना पड़ेगा जिना अस्पताल के कैंसर वार्ड में, जहां लोगों को दिखाया जाए कि देखो इस गुटखे मावे से कैंसर किस तरह फैल रहा है, किस तरह कैंसर हो रहा है, इसके क्या नुकसान हैं। जब जाके शायद लोगों को समझ में आए, इन अफसरान को काम करने दिया जाए। आपको पता है शहर में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। एक अफसर आपको इस वक्त मिला हुआ है और वो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो, जो अपने कबीले के, अपनी कौम के सरदार भी हैं और उनके अंदर एक बड़ापन मैंने देखा है। वो सादा तबीयत के हैं, वो दरगुजर से काम लेते हैं। महकमा पुलिस को वो जदीद खतूत पर तो इस्तवार करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि महकमा पुलिस का जो मोराल है वो बुलंद रहे। शाहीन फोर्स को फाल किया जा रहा है। उसके लिए जावेद आलम ओडो ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम तरतीब दिए हैं जो जल्दी सामने आएंगे, और शहरियों की चादर, चार दीवारी, जानो माल की हिफाजत के लिए शाहीन फोर्स गलियों और महल्लों में मोटरसाइकिलों पर गश्त करेगी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स का किला कमा करेगी। इन दिनों गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट लेने SHO लांडी हैं रिजवान पटेल। उन्होंने बहुत अच्छे मुल्जिमान पकड़े और बड़े जराइम के खिलाफ अच्छा काम किया। रिजवान पटेल का कहना है कि जो चीज़ गलत है उसको किसी भी दलील के जरिए सही साबित नहीं किया जा सकता। जो गलत है वो गलत है। उनसे कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो इंतहाई बेहतरीन पुलिस अफसर हैं। इसी तरीके से शहर के अंदर जो थाना जात हैं उनमें SHO अजीजाबाद हैं वकार केसर, अच्छा काम करते हैं। SHO शरीफाबाद हैं तनवीर मुराद, अच्छा काम करते हैं। SHO नाजमाबाद हैं कामरान हैदर, अच्छा काम करते हैं। SHO सुरजानी टाउन है इरफान आसिफ, अच्छे पुलिस अफसर है, अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब आपको मैं सुरजानी टाउन थाने का बताऊं, सुरजानी टाउन थाने सुरजानी में मजीद 2 नहीं तो 1 थाना अशद जरूरी है। बहुत बड़ा इलाका है, स्ट्रीट क्राइम यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन मौजूदा SHO इरफान आसिफ उसकी रोकथाम के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरूकार ला रहे हैं। नाज़रीन, ये थी कराची पुलिस की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अफसरान में बदली फैली हुई है और कुल जमा करके एक ही चीज सामने आई कि मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूं तेरा, तूने सुना। अस्सलाम वालेकुम।